का कार्य करूंगा, स्वास्थ्य रक्षणम का कार्य करूंगा, स्वास्थ्य रक्षणम का कार्य करूंगा। धन्यवाद। आज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था होलिस्टिक मेडिसिन के ऊपर ICH 23 जो विजय जी स्वामी जी जंगम ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था ऊर्जा फाउंडेशन और आरोग्य भारती के माध्यम से। ये फंक्शन इसलिए कॉन्फ्रेंस और उसके साथ में जो हमारी आज यहाँ पे आरोग्य एक्सपो था इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे हर पैथी के लोग आके अपने अपने तरीके से अपनी बातें यहाँ पे बता गए और जो आराम से किसी को भी सीख के अपने खुद के लिए कर सकते हैं। और इसके साथ में जिन्होंने भी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिए, जिन्होंने भी यहाँ पे अपने विचार प्रकट किए, तो ऐसे है कि कल जाके वो डॉक्टर्स अपने क्लिनिक में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका पर्पज़ कहीं पे भी सब लोगों को अच्छी एक सुविधा मिले आरोग्य की। इसके साथ में जैसे CPR जैसे माध्यम है कि जहाँ पे पेशेंट को जल्दी से अगर कुछ हार्ट अटैक जैसे आ गया तो कैसे बचाता है, कमर में पीठ में दर्द है तो उसे कैसे बाहर निकालना है। एक पैथी का यूज़ जैसे आज लाइफस्टाइल के ऊपर सब लोग बात कर रहे हैं तो लोगों को कम से कम खर्चे में, भारत जैसे देश में खर्चा अगर ज़्यादा आ जाता है तो उसमें लोग ट्रीटमेंट के लिए नहीं आते, तो उसमें कैसे किया जाए और हर पैथी को एक साथ में मिला के कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में इसमें चर्चा हुई। 2 दिनों में लगभग 20 स्पीकर्स यहाँ पे आए थे कि जिन्होंने ये सब बातें आप सब तक पहुँचाई है। तो ये बातें समझ के जैसे शिवाजी महाराज के उनके वर्तन से भी कितनी प्रेरणा हमें मिलती है कि जो लोगों को आत्महत्याओं से बचा सकता है, किसी को डिप्रेशन से निकाल सकता है, यहाँ से लेके पेन मैनेजमेंट तक हर चीज़ में बातें जो हो गई। मुझे लगता है कि ICH 23 का इसी में यश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को ये ज्ञान मिल जाएगा और इसके लिए हम सब यहाँ पे उपस्थित डेलीगेट्स का आभारी है। हम बताइए आज के लिए क्या बताइए। नमस्कार, डॉक्टर मधुरा कुलकर्णी, practicing Ayurvedic gynecologist and representing Arogya Bharati and Arogya Dham. Basically, ICH 2030 is international seminar conducted for wellness for all. Holistic method for diagnostic and the therapeutic purpose of the patients are the main aim of the government today. After COVID, there are many diseases like heart diseases, different kind of pains, lung diseases are common nowadays, and for that a holistic platform is must. And for that ICH 2023 has gathered so many lecturers and practitioners, and with the practical demos we conducted seminars and even the stalls were arranged where we gave free of charge treatment to the patient. I think this should be a great step towards the fight of problems occurring in post-COVID era, and ICH 2003 is successful. Hello, I am Dr. Sunita Vijayamagar. I am professor in the Department of Ophthalmology and ENT, and I am basically Ayurveda doctor. And here I am not only Ayurveda doctor or consultant in ophthalmology, but I am part of this coordinator of Arogya Bharati of Navi Mumbai wing. So this particular international holistic conference, which is organized, which is a joint venture of Urja Foundation and Arogya Bharati. So I am representing here Arogya Bharati, and since 2 days session, more than 400-500 delegates were present from the different corners of India, and some of the delegates are from the abroad also, and number of diseases from diabetes to hypertension to computer vision syndrome to diabetic retinopathy. Each and everything was addressed in this, and different platform alternative pathy people were involved, and the name itself suggests the holistic health for all. We are working here for the well-being of
all. We are not only treating the diseases or ocular elements, but we are here to prevent the diseases. That is the take-home message. And Arogya Bharati is working in the health sector just to prevent the illness, to counsel the patient, and then treatment protocol, and then we will publish the research protocol also. We are having a evidence-based treatment, and we are addressing the very critical issue from cancer to hepatitis to diabetes to eye diseases or ENT disease. So I hope so कि people are benefited. And what is the speciality of this conference? Not only medical fraternity, but common man was also involved here. Engineers, bank officer, judge, apart from doctor, all the people from all the sectors have enjoyed here, right from Sujok to acupressure to Ayurveda to modern science, people were also present. So I think if any questions you would like to ask me, I am here to answer. शेषराज रामभाऊ कुरपटवार अन्ना जी करके सब पहचानते हैं। आरोग्य भारती का मुंबई प्रांत का मैं सह सचिव करके हूँ। आरोग्य भारती है आरोग्य क्षेत्र में सेवाभावी कार्यकर्ताओं की संगठना है। हम 24 आयामों के माध्यम से समाज में बीमारी नहीं होवे इसके लिए कार्य करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ ग्राम और स्वस्थ राष्ट्र, ऐसा हमारा उद्देश्य है। ये घरेलू उपचार, महिला कार्यकर्ता, योग, सूर्य नमस्कार, धन्वंतरी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, पर्यावरण और कुपोषण जैसे विषय जो है, मधुमेह, योग प्रबंधन, इन आयामों के माध्यम से समाज के जो निचले स्तर के जो लोग हैं वो बीमार नहीं पड़े, इसके लिए उनमें आत्मविश्वास जगाना, हिम्मत जगाना। और छोटे छोटे जो पहले जो बड़ा परिवार रहता था, घर में घरेलू उपचार के माध्यम से छोटी मोटी बीमारियों के लिए दवाखाने में जाना नहीं पड़ता था, तो वही जागृति करने के लिए हम अभी ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और होलिस्टिक हेल्थ आरोग्य एक्सपो 2023 में आरोग्य भारती और ऊर्जा फाउंडेशन के साथ में मिलके सब समाज के इस माध्यम से सभी जो पैरा मेडिकल जो है, नेचुरोपैथी, न्यूरोपैथी जैसे है, एक्यूप्रेशर प्रेशर जैसे विषय जो है, अन्य विषयों के माध्यम से सुजोग जैसे विषय जो है, जो सामान्य लोग इसका उपयोग कर सकते हैं और बड़े बड़े खर्चे से बच सकते हैं। सामान्य लोगों को बीमारी से बचने के लिए जो कोरोना के जैसे काल में मोदी जी ने जैसा प्रचार किया, जो आयुर्वेदिक काढ़ा वगैरह इन्हों से जो लोगों में उत्साह बढ़ा और बहुत सारी बीमारियों में हिम्मत से लोगों ने काम किया, तो उनको बहुत हेल्प मिली और बहुत लोगों की जान बच गई है। इसके लिए इसका प्रचार करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस आयोजन किया है। इसके लिए हम ऊर्जा फाउंडेशन के साथ में जुड़ के अच्छी तरह से सामान्य वर्ग तक और बड़े से बड़े वर्ग लोग सभी डॉक्टरों की ये बड़ी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजन किया है। उसमें हमने इधर आरोग्य एक्सपो में फ्री में स्टॉल लगाए थे, आयुर्वेदिक के ऐसे एक्यूपंक्चर के वगैरह, आयुर्वेदिक आरोग्य भारती के माध्यम से वगैरह, ऐसा नस्य, योग, प्राणायाम, नेत्र चिकित्सा जैसे ऐसे और अभ्यंग जैसे जो है, और बाकी लोगों ने भी ऊर्जा फाउंडेशन के माध्यम से और अन्य ये जो रिजुआ माध्यम से संतोष पांडे जी के माध्यम से भी स्टॉल लगाए हैं, आयुर्वेदिक स्टॉल। और बहुत सारे लोगों ने जो कॉन्फ्रेंस में आए हैं वो लोगों ने सभी स्टॉल को विज़िट देके वगैरह उन्होंने सेवाओं का लाभ लिया है और बहुत सारे आयुर्वेदिक विषय का पूरे समाज में इसका प्रचार और प्रसार होने के लिए हम प्रयास करने का एक जो विजय जंगम जी के साथ में जो एक बड़ा शिवधनुष्य जो था, ये इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस आयोजन करना एक सादी बात नहीं थी, बहुत कठिन काम था। लेकिन हम सभी लोगों ने मिलकर आरोग्य भारती की टीम और ऊर्जा फाउंडेशन की टीम और बहुत सारे सहयोगी संस्था है, इन्होंने सहायता की और ये कॉन्फ्रेंस सक्सेस करने का एक प्रयास किया है। और सभी लोगों ने इसमें जो जिन्होंने सहयोग दिया है उन सभी का मैं आरोग्य भारती के माध्यम से उनका सबका धन्यवाद करता हूं। और विजय जंगम सर और उनके टीम का और सभी हमारे आरोग्य भारती के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत ली है, सभी कार्यकर्ताओं उनका मैं इस माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। और सभी पत्रकार बंधुओं ने भी सहायता की है और मेहनत ली, आप सबका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। क्या इवेंट है? ये तो न केवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था बल्कि आरोग्य रक्षक का सत्संग था, ऐसा मैं कह दूँ तो बहुत ही उचित रहेगा। क्योंकि अलग अलग पैथी के लोग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, अलग अलग कायरोपैथी, एक्यूप्रेशर,
ये सभी लोगों का आज यहाँ पर सम्मेलन हुआ और लोगों को प्रिवेंटिव साइंस मतलब बड़े अस्पताल में कुछ लोगों का जो पैसा जाता है वो लोगों को न लगे, ऑपरेशन टालने की बहुत सारी प्रैक्टिसेस यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन के बतौर बता दी गई। तो मुझे लगता है कि यदि सब प्याथियाँ ऐसे माध्यम से एकत्रित आती है तो मुझे लगता है कि लोगों को कम्प्रेहेंसिव ट्रीटमेंट मिलेगा। आज के इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा बहुत सारे लोगों को आरोग्यजनक सुविधाएं प्राप्त होगी। आयुष मिनिस्टर की वजह से भी और आयुष मंत्रालय की वजह से भी अभी बहुत सारे सुविधाएं पूरे हिंदुस्तान में मिल रही लोगों को। जो आज इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, क्या किस तरीके का इसमें सहयोग था आपका, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे बताने में बेहद खुशी हो गई है कि आयुष डायरेक्टर ऑफ आयुष महाराष्ट्र आयुष संचालनालय ने मान्यता देकर ऊर्जा फाउंडेशन एवं आरोग्य भारती के सहयोग से आज पिछले 2 दिन से हमने यहाँ पर रामबाव मालगी प्रबोधिनी केशव सृष्टि में जो कि शहर से काफ़ी दूर है और हम लोगों ने इनवाइट किया था बहुत सारे लोगों को, डॉक्टर्स, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स और सारे जो हेल्थ एंड कॉन्शियस जो लोग हैं उनको हमने इनवाइट किया था इस प्रोग्राम में। और ये 2 दिन का जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 500 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हमें मिले, जबकि हमारा एक अनुमान था कि 300 के आसपास लोग आएंगे, लेकिन 500 से ज़्यादा केवल कॉन्फ्रेंस के लोग आए। पूरे देश भर से, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, सब मतलब हर एक स्टेट से यहाँ पर लोग आए। मैं बहुत खुश हूँ, बताने में मुझे बहुत आनंद हो रहा है। यही नहीं कि बल्कि बहुत सारे हमारे स्पीकर्स थे, स्टूडेंट्स भी थे, स्पीकर अलग अलग देशों से यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे और बहुत सारे कम से कम 3000 से ज़्यादा लोगों ने लाइव कॉन्फ्रेंस हमने पिछले 2 बार देखा। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी सेशन 1 घंटा 30 मिनट 40 मिनट लोग सुनते हैं, लेकिन हमने पूरा 8 घंटा लाइव दिखाया, कल भी और आज भी। और कंटिन्यूसली मैं फिगर चेक कर रहा था, कम से कम 2800 2900 के ऊपर फिगर जा रही। तो मतलब 3000 लोग हर दिन वो स्टूडेंट जो ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया था ऑनलाइन के लिए वो देख रहे थे। 5000 से लोग ज़्यादा यहाँ पर विजिट करके गए आरोग्य एक्सपो में। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि ऊर्जा फाउंडेशन की है। हमने जो पहले ही संकल्प लिया था कि शिक्षा अभियान, आरोग्य व्यवस्था और पर्यावरण, उसमें से आरोग्य व्यवस्था में एक नई दिशा देने में हम कामयाब हो गए ऐसे मुझे लगता है। और मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि आपके सारे मीडिया कर्मी हैं, चैनल डिजिटल पार्टनर्स है, और इसका असली हकदार अगर कोई है तो ऊर्जा फाउंडेशन और आरोग्य भारती के जो वॉलंटियर्स हैं उनको जाता है कि उनके वजह से ये बहुत बड़ा सक्सेस यहाँ पर मिला है। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि कल तक तो मैं थोड़ा बहुत आपके सामने माध्यम से मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा मैं चिंतित था कि इतने बड़े पैमाने पे लोग कैसे आ सकते हैं, शहर से थोड़ा दूर है। लेकिन मैं सच में बहुत खुश हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में, आपने भी देखा होगा बहुत बड़ी क्राउड थी, लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए थे, रजिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छे हुए थे। और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन होलिस्टिक हेल्थ एंड आरोग्य एक्सपो जो कि ऊर्जा फाउंडेशन एंड आरोग्य भारती ने और बाकी सारे सहयोग संस्था ने जो मिलकर किया था, वो बहुत बड़ा ग्रैंड सक्सेस हो गया है। इसके लिए मैं सारे लोगों का, स्पेशली महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, उनके OSD मिस्टर चिवटे सर, मंगेश चिवटे सर, राम राउत सर एंड अपने हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर तानाजी सावंत सर, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। यहाँ पर आरोग्य एक्सपो में आपने देखा होगा कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, नेचुरोपैथी के अंतर्गत मड चिकित्सा, मड थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, सुजोग थेरेपी, ये अलग अलग थेरेपीज़ यहाँ पर लोगों ने इसका लाभ लिया। स्पेशली कायरोथेरेपी जो अलग की तरीके की टेक्निक है, उसका भी लोगों ने लाभ लिया। स्पेशली पंचकर्म की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमने यहाँ पे प्रोवाइड की, सारे लोगों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की, जबकि इसका बहुत चार्ज अलग अलग जगह पे लेते हैं। लेकिन हमने ऊर्जा फाउंडेशन में पहले ही सोचा था कि हमें यहाँ पे डेमो क्लिनिक, फ्री डेमो क्लिनिक लोगों के लिए देना है, वो हमने करके दिखा दिया। मेरा नाम नीलेश योगेश सिंघानिया है। मैं आरोग्य भारती मुंबई प्रांत का सचिव हूँ। यहाँ पर एक इंटरनेशनल होलिस्टिक साइंस का और आयुष एक्सपो मुंबई का प्रोग्राम अरेंज किया गया है। ऊर्जा फाउंडेशन और आरोग्य भारती ये दोनों ने मिलकर ये प्रोग्राम अरेंज किया है रामबाव मालगी प्रबोधिनी केशव सृष्टि में। इसका उद्देश्य है कि हर परंपरागत चिकित्सा को सभी के सामने लेकर आना, इसके फ़ायदे नुकसान सभी लोगों को पता चले, ऐसी व्यवस्था करना, ऐसा मंच उपलब्ध कराना।
इस योजना के तहत हमने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया।